Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Yeah, kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. How are you all? आप लोग कैसे हैं? Great. अच्छे know, हैं, बढ़िया हैं. Holy Spirit told me that to tell the church, whenever someone asks you, how are you, you must say, I'm great. और पवित्र आत्मा ने पूछा कि जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं तो कहिए मैं बढ़िया हूँ, मैं महान हूँ. Because these are great days. क्योंकि ये हमारे लिए महान दिन है. Amen. Amen. This is a good day for the church. कलीसिया के लिए बहुत अच्छा दिन है. Amen. Amen. Because the church is the solution to the problems. क्योंकि सारी तकलीफों का जो उपाय है वो सिर्फ कलीसिया है. But many don't see it that way. पर कई लोग इस नजर से नहीं They देखते. are carried away by the thoughts of the world. दुनिया के विचारों में वो भी बह के निकल जाते हैं. They are carried away with problems. समस्याओं में बह के निकल But जाते they हैं. never thought they are the solution to the problem. पर वो कभी जानते ही नहीं कि इस समस्या का उपाय वो खुद हैं. Amen. Amen. Who is the solution? कौन उपाय है? Jesus. यीशु है. Amen. Amen. And you are in Christ. और आप मसीह में हैं. So you are the solution. इसलिए आप खुद उपाय हैं. Why are you carried away with the problems? क्यों आप तकलीफों में बह जाते हैं? Amen. Amen. See, you need to look at yourself differently. देखिए अब आपको अपने आप को अलग रीति से देखना Consider है. yourself, I'm a solution. और सोचिए कि मैं खुद उपाय हूँ. When Jesus came, जब यीशु आए he didn't come as a problem. तो यीशु समस्या Hello? के तौर पे नहीं आए. Did he come as a तो problem? वो खुद समस्या बनकर आए He क्या? came as a solution. वो उपाय बनकर आए. It's the devil that is blinding our ये minds शैतान है जो हमारे मन को अंधा कर रहा and है showing you the problem. और आपको सिर्फ तकलीफ दिखाना चाहता है. But once he knows, पर एक बार वो जान you लेता know है you're the solution, कि आप खुद ही उपाय बन चुके हैं he will run away. तो वो आपसे दूर भागेगा. Because he knows क्योंकि वो जानता है the church is the कि solution. कलीसिया ही उपाय है. There is healing in the church. और कलीसिया में आरोग्य है. It's a place of refuge. ये शरण स्थान It's a है. place of protection. ये सुरक्षा का It's a स्थान है. place of blessing. और ये बड़े आशीर्वाद का स्थान Amen. है. Amen. There are only two, केवल दो स्थान है. the church and outside. एक कलीसिया और दूसरा उसके बाहर. Outside the church is the world. और कलीसिया के बाहर दुनिया है. Amen. There are only two places. केवल दो ही स्थान है. Either you live in Christ या तो आप मसीह में जी रहे or हैं you're outside या Christ. आप मसीह के बाहर जी रहे हैं. In Christ is the solution. और मसीह के अंदर उपाय है. Outside Christ is the problem. और मसीह के बाहर समस्याएं हैं. That's what Jesus said. यही तो यीशु ने कहा. In this world, इस जगत में you'll have troubles. तुम संकट पाओगे. Amen. Amen. In this world, इस जगत में he's talking to those in the world. और वो उनसे बातें कर रहा है जो दुनिया में है. He's not talking to you. वो तुमसे बातें नहीं कर You रहा. need to know what to take, what not to take. हमें पता होना चाहिए कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. Many Christians are taking those things that the world people should take. और बहुत से मसीह उन बातों को ले रहे हैं जो कि दुनिया के लोगों को लेनी चाहिए. Amen. Amen. You're taking the problem. आप तकलीफों को ले रहे हैं. Where are you looking to the solution then? और फिर आपका ध्यान उपाय पे कहाँ है? To Jesus. यीशु की ओर. Because you think that you are the problem and Jesus is the solution. क्योंकि आपको लगता है कि मैं मेरी तकलीफ अलग है और यीशु अलग है. Hello. You are in Christ. आप मसीह के अंदर हैं. You're the solution. आप खुद उपाय हैं. Amen. Amen. The problem knows where is the solution. तकलीफ खुद जानती है कि उपाय कहाँ है. But the solution doesn't know. पर खुद उपाय को पता नहीं. Jesus said, in this world, यीशु ने कहा इस जगत में you'll have tribulation. तुम संकट पाओगे. He's not talking to you. और यीशु आपसे बातें नहीं कर रहे Hello. थे. Is he talking to you? तो क्या यीशु आपसे Then why बातें do कर you रहे take थे? that? फिर आप वो तकलीफ क्यों अपनाते हैं? You know, the problem with Christians, they are not rightly dividing the word of truth. आप जानते हैं कि मसीहों के साथ परेशानी क्या है कि उन्होंने सत्य के वचन को ठीक से बांटा नहीं है. During these days of confinement, Holy Spirit has taken me deeper into the word. आप जानते हैं इस समय पे जहाँ हम तालाबंदी में हैं, घर के अंदर बंद है, पवित्र आत्मा मुझे वचन की गहराई And में ले I've गया seen है. many shocking things. और मैंने बहुत से हैरान करने वाली बातों को And it देखा would है. shock you. और ये बात आपको भी हैरान करके रख देगी. Amen. Amen. You know, the church is a very important place. आप जानते हैं कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण I स्थान posted a है. message, मैंने एक संदेश डाला which Holy Spirit gave me. जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया It's not the Lord's will to shut the church. कि प्रभु की इच्छा नहीं कि कलीसिया बंद की जाए. No, 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 no. नहीं, बिल्कुल भी One day नहीं. it's going to happen. एक दिन ऐसा होगा The devil will do it और शैतान ऐसा करके because he दिखाएगा wants to close down the solution. क्योंकि वो उपाय को बंद करना He चाहता है. knows वो जानता The है church is the कि solution. कलीसिया ही उपाय है. Amen. He Amen. knows it. और वो ये बात जानता है. He cannot continue like this when the church is growing and glowing and becoming greater and greater. और जहाँ कलीसिया तेजस्वी होकर महान होकर ऊपर बढ़ती जाएगी वहाँ शैतान अपना काम जमा नहीं पाएगा. That's why Holy Spirit told me he's made a false church into true church. और ये कारण है पवित्र आत्मा ने बताया कि
सच्ची कलीसिया में ही उसने झूठी कलीसिया खड़ी की है, हाँ, ताकि उसको पोकल बनाने के लिए असली चर्च को, ताकि people are confused ताकि लोग उलझ जाएं that they take in the false church instead of the true church. कि जहाँ सच्ची कलीसिया को अपनाना है वहाँ वो झूठी कलीसिया को अपनाने It's लगेंगे। the devil's plan, ये शैतान की योजना the है, future plan. ये उसकी भविष्य की योजना है। He's put a false church in the true church. उसने सच्ची कलीसिया में झूठी कलीसिया छिपा दी है। And the Lord said, let it grow, don't worry. और प्रभु कह रहा है दोनों को बढ़ने दो, A time will come. समय आएगा। The reapers know और जो काटने वाले हैं वो जानते what to हैं take, what not to कि take. किसकी कटाई करनी है किसकी नहीं But this करनी is the है। great confusion the devil has brought. पर ऐसी बड़ी गड़बड़ी शैतान ने पैदा की है। Amen. Amen. So church is a place of refuge. इसलिए कलीसिया शरण लेने का स्थान है। Ecclesia in Greek means called out from different places to gather in one place. और यूनानी भाषा में एक्लीशिया का मतलब है कि अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा करके बुलाए गए लोग। Amen. Amen. Called from different places कि अलग अलग जगहों से बुलाए गए in one place to gather ताकि वो एक जगह जमा हो सके, to manifest Christ. ताकि मसीह को प्रकट कर The सके। church is the testimony of Christ. और कलीसिया मसीह की गवाही है। Amen. Amen. So Jesus was talking to those in the world. इसलिए यीशु उनसे बातें कर रहा था जो दुनिया में You है who are in the world, कि तुम जो दुनिया you में will हो have troubles. तुम संकट देखोगे। And believers say, see, Jesus said, in this world you will have troubles, so we will have troubles. और Arey, who told you? विश्वासु वो बात अपने लिए लेने लगे और कहने लगे देखो यीशु ने खुद कहा संकट पाओगे तुम दुनिया में और देखो इसलिए हम संकट पा रहे हैं। पर यीशु ने कब आपसे ये बात कही? 90% of the Christians are talking like that. 90% मसीह लोग यही The बातें कर first रहे thing they हैं take that verse. और पहला काम करते हैं कि ये वचन को You अपनाते हैं know, in this world you'll have tribulation. कि इस जगत में तुम संकट को पाओगे। Then the believers say, Amen, yes, yes. और फिर आप हामी भर के कहते हैं आमीन, हाँ सच में ये बात हो रही है You'll have troubles. कि तुम संकट पाओगे, परेशानी पाओगे। Oh, Prabhu, save us, Lord. कि हे प्रभु तू बचा हमें इन तकलीफ परेशानियों से। What you are taking, you don't know. आप क्या अपना रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये खुद आपको नहीं You पता। don't know where you are. आपको खुद पता नहीं आप You कहाँ don't know your हैं। true identity. आप अपनी सच्ची पहचान को नहीं You just जानते। take the word आप यूं ही वचन को उठाते हैं and apply it to yourself. और खुद के जीवन के लिए लागू करते हैं। Amen. Amen. So, you know, Christians are living such a confused life. तो मसीह लोग इस तरह का गड़बड़ाया हुआ जीवन जी रहे हैं। There are so many things we need to, remove. बहुत सी बातें हैं जिन्हें निकालना होगा। जो नया प्रभु सिखा रहा है वो आने के पहले बहुत जुना निकालने पड़ेगा हमको। बहुत सारा गलती हम लोग ने वर्ड से ले लिया है and we have applied to ourselves. और वो गलत बातें हम अपने जीवन पर लागू कर रहे We हैं। have not seen to whom the Lord is saying. हम ये नहीं देख पा रहे कि कौन सी बात प्रभु किससे कह रहा है। All these gospels are written mostly to the Jews. आप जानते हैं अधिकतर जो शुभ वर्तमान है वो शुभ वर्तमान यहूदी लोगों को लिखा गया। Hello. All the disciples were preaching to the Jews. और अधिकतर जो सभी चेले थे वो यहूदियों को प्रचार कर रहे Even the थे। Lord Jesus came for the Jews. यहाँ तक कि प्रभु यीशु भी यहूदी लोगों के लिए आए। Amen. Amen. I will teach you about that mother who came to Jesus, telling about her daughter who was demonized. और मैं उस माँ की कहानी आपको बताना चाहूँगा जो यीशु के पास आती है जिसकी लड़की में दुरात्मा थी। I'll teach you that. तो वो गहराई में आपको जरूर सिखाना चाहूँगा। She had no covenant, she had nothing. उसके पास ना कोई वाचा थी ना कोई करार था। Yet because of her faith, she received. फिर भी उसके विश्वास के कारण उसने जो मांगा उसे मिला। Amen. Amen. No covenant, no promise, nothing. She was a Gentile lady. प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के वादे, करार उसके लिए नहीं थे, वो अन्य जाति वाली स्त्री थी। In fact, the Lord said, no one gives the food that belongs to the family to the dogs. और प्रभु ने उससे क्या कहा कि बच्चों की मुंह की रोटी निकाल के कुत्तों के आगे फेंकना अच्छा नहीं। आरोग्य जो उसके बच्चे लोगों का हक है। What is? हक। हाँ, खाना है। Healing is the bread of God's children. और आरोग्य परमेश्वर के बच्चों की रोटी है। Amen. Amen. How can I remove it and give it to the dogs? और वो कहता है कि ये To the मेरे dog. बच्चों की रोटी निकाल कर मैं कुत्तों के आगे कैसे डालूं? That means how close we are. Healing is the children's bread. You are a child of God. इसका मतलब है आरोग्य हमारे कितने पास है क्योंकि हम तो परमेश्वर की संतान हैं। Amen. Amen. Lord बोला मैं इनका निकाल के dogs को दो क्या?
means Gentiles, अन्य जातियों के having लिए no कहा गया। promise, no covenant, nothing, no जहाँ relationship. परमेश्वर के नाते संबंध, प्रतिज्ञा, वादे, करार उनके साथ कभी थे ही नहीं। But you don't see your side. पर आप अपने भाग को देखते ही You नहीं। don't see your strength, your side. आप अपने बल को, अपने पक्ष को देखते ही He's talking नहीं। about you. और प्रभु आपके विषय में बोल रहा You है। know, the problem with Christians, we see what we shouldn't see. अब मसीहों के साथ परेशानी है कि वो देखते हैं जो उन्हें नहीं And देखना what we है, have to see, we don't see. और जो देखना है वो नहीं देखते। This is the problem. यही तो मसीहों के साथ परेशानी है। Hello, this is the truth I'm telling और you. सच्चाई आपसे बोल रहा हूँ। You know what you're seeing, जो आप देख रहे you हैं shouldn't see. वो आपको देखना नहीं है, And what you should see, और you're जो not seeing it. देखना है वो आप देख नहीं रहे। You need a revelation. आपको प्रकाश चाहिए। Amen. Amen. When you read it, you need a revelation. जहाँ पढ़ते हैं जरूरी उसका प्रकाश आपको दिखे। What is Holy Spirit telling पवित्र you? आत्मा क्या बोलना चाहता है? You know, many focused on that lady, बहुत से लोग उस स्त्री की ओर देखते on the हैं, Gentile, अन्य जाति की ओर and देखते they हैं, forgot he was talking to his own children. और वो भूल गए कि ये बात प्रभु अपने बच्चों से कह रहा था, Healing is children's bread. कि वो कह रहा था कि आरोग्य मेरे बच्चों की You रोटी है, take that for और तुम yourself. अपने लिए इसे लो। Amen. Amen. Healing is children's bread. कि आरोग्य परमेश्वर के बच्चों की The Lord रोटी will है, not give it to others. और प्रभु ये दूसरों को नहीं First देगा। and foremost, it is yours. पहले तो इस पर आपका हक है। Amen. Amen. अगर उसको तुमने छोड़ दिया, जो मेन है उसको छोड़ दिया तुमने, और दूसरे का जो बता रहा था उसको पकड़ के लिया, जो जेंटाइल्स का है। See, your focus is very important. आपका ध्यान कहाँ है ये बहुत मायने रखता What है। you see is very important. क्या देखते हैं ये बहुत मायने रखता What है। you shouldn't see, you must not see. और जो नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखना What you चाहिए, should see, you see. और जो देखना चाहिए उसे देखिए। That will benefit you. इससे आपका फायदा होगा। We have been spending more on what we shouldn't see. हम अधिकतर समय उसमें डालते हैं जो हमें नहीं In देखना this है, world, you have tribulation. कि संकट में तुम, इस जगत में तुम संकट Many पाओगे। are preaching that. बहुत से ये प्रचार कर रहे हैं। Amen. Amen. Yes. You know what is happening to you? आप जानते हैं आपके साथ You क्या हो have रहा है? taken that trouble for yourself. कि आपने वो संकट खुद के लिए अपना लिया है। Are you in Christ or are you in the world? आप जगत में हैं या मसीह में हैं? You're in Christ. आप मसीह में हैं। Amen. Amen. You're in Christ. आप मसीह में See, हैं। there are only two places. देखिए दो ही स्थान है। The moment you believe, जिस क्षण आप विश्वास Holy करते Spirit हैं baptizes you in Christ. तो पवित्र आत्मा आपका बपतिस्मा मसीह में कर You देता है। become the body of Christ. आप मसीह का शरीर बन जाते He is the हैं, head of this body. और वही शरीर का सर है। Amen. Amen. Now you don't belong to the world. अब आप दुनिया की नहीं He रहे। says, don't love the world. वचन कहता है दुनिया से प्रेम They न think that in the कर, world. ना ही जगत की किसी वस्तु से प्रेम कर। Amen. Amen. Physically we may be there, हो सकता है शरीर में हम दुनिया में हैं, but spiritually we are in Christ. पर आत्मा में हम मसीह में हैं। Amen. Amen. Spiritual is above the natural. और जो आत्मा है वो सांसारिक जगत That's के why ऊपर है, your faith is very powerful. इसलिए आपका विश्वास बहुत ही It ताकतवर is है, beyond the natural. और सांसारिक जगत के ऊपर आपका विश्वास Amen. है। Amen. Faith is very powerful. विश्वास बहुत ही सामर्थ्यशाली है। You're believing like God. आप परमेश्वर के समान विश्वास रखते हैं, The natural people don't believe that way. और सांसारिक इंसान ऐसा विश्वास नहीं कर सकता। You're going beyond the natural. आप सांसारिक इंद्रियों के परे जाते Faith हैं। is going beyond the natural. विश्वास का मतलब सांसारिक इंद्रियों के परे जाके बोलना। Faith is walking in the supernatural. विश्वास का मतलब अलौकिक जगत में चलना। Amen. Amen. It's not in the natural. ये सांसारिक जगत की बात है ही नहीं। That's what the Bible says. When you have faith, it pleases God. और ये कारण वचन में लिखा है जहाँ आपके अंदर विश्वास होता है ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती You're है। just believing, God becomes so happy. आप केवल विश्वास करते हैं ये बात परमेश्वर को अत्यंत Though प्रसन्न you करती see in the है। natural, इसके बावजूद कि आप नैसर्गिक में देखते हैं, yet you believe in the supernatural. फिर भी आप अलौकिक वो They would not believe. प्रभु अक्सर इजरायलियों पे इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। So what is the Lord saying? तो प्रभु क्या कह In रहे this हैं world you'll have कि tribulation. जगत में तुम संकट पाओगे, Be of good cheer. पर प्रभु कहता है धाड़स बांध, I've overcome the world. क्योंकि मैं जगत पे जयवंत हो चुका हूँ। Amen. Amen. You forgot that. आप ये बात भूल गए Jesus has overcome the world. कि यीशु ने जगत पे जय पाई है। Amen. Amen. जो भी जग से आता है उसको प्रभु ने उसको जय पाया है। जय पाया है। Amen. खुद के लिए नहीं, हमारे लिए। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं, प्रभु ने जय पाया, हाँ धन्यवाद प्रभु मुझे बचा। अरे उसके लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है। Praise God. हेलो, why do you forget that? आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? प्रभु ने जो किया बहुत अच्छा किया प्रभु, तूने शैतान को हरा दिया, नहीं तो बर्बाद करते शैतान को निकाल दे। अरे उसके लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया।
Amen. आमेन। प्रभु जय पाया, प्रभु मुझे भी देना। नहीं, वो तुम्हारे लिए किया है, तुमने जय पाया है। आमेन। Amen. ऐसा मत बोल, प्रभु ने तूने किया ना, मुझे कैसा भी मुझे। नहीं नहीं, you are included. आप उसके अंदर शामिल हैं। Amen. Amen. He not only paid for your sins, उसने केवल plural, आपके पापों की भरपाई नहीं की, पापों बहुवचन, He took us on the cross पर उसने खुद हमें क्रूस पे ले लिया, because we had the Adamic nature. क्योंकि हमारे अंदर पहले आदम का स्वभाव The था, sin nature. पाप का स्वभाव था, That's the factory of all sins. और यही सारे पापों का उत्पादन करता है। पूरा जड़ है उधर का, तो इसके लिए हमको खुद को लेकर गया। Amen. आमेन। And He put us to death और उसने हमें अपने साथ, हम भी मर गए जहाँ पे Amen. मरा। आमेन। ताकि वो old nature, Adamic nature, sin nature हमारे से मर जाए। ताकि पुराना आदम का स्वभाव, पाप का स्वभाव, अपराध का सब स्वभाव पूरा मर And He जाए, rose up. और वो जी उठा। Amen. आमेन। A new life. एक नया जीवन, We have new life now. हमारे अंदर अब एक नया जीवन है। Amen. आमेन। Don't think about the past now. अपने गुजरे कल के बारे में मत सोचिए, Reckon yourself dead. और सोचिए कि मैं मर चुका हूँ। What is meaning? What is the meaning of reckon? अब मानिए का मतलब क्या है, जानिए का Believe. मतलब क्या है, विश्वास See, कीजिए। God is not saying, ना लोग बोलते हैं प्रभु मुझे मार दे, प्रभु मुझे मार दे, प्रभु। ऐसा नहीं है, मार दे नहीं। प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। मेरा जुन्ना आदमी को मारना चाहता। तुम बोलता है इसके लिए प्रभु करता है क्या? प्रभु ने कर दिया है। आमेन। हेलो, he is not telling you to do anything. वो आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, इसे सब काम हो गया, बिलीव करो। हेलो, what is he saying? तो प्रभु क्या कह रहा है? Believe. सिर्फ विश्वास कीजिए। Amen. Amen. See, believing is more powerful than even in your doing. देखिए, आपके कामों से भी बढ़कर ताकत है आपके विश्वास में। We think God is happy when we are doing. हमें लगता है जब हम काम करते हैं तब प्रभु खुश होता No, no, है। he is happy when you are believing. जब आप विश्वास करते हैं सच्चे दिल से, तब प्रभु खुश होता What है। you believe is very important. इसलिए आप क्या विश्वास करते हैं, ये अधिक मायने रखता है। Oh man, there's no time. Glory to God. Yeah. Okay, please be seated आप लोग बैठ सकते at हैं, the offering time. आप दान अर्पण का समय